Hello students, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LG Institute of Engineering and Technology. Unit 2, Quality of Water. In today's session, Water Quality Monitoring. In water quality monitoring, I explain automatic wastewater sampling. So our first topic for wastewater monitoring is automatic wastewater sampling. So let's start today's topic, and I want to say this topic is very important topic for GTU exam and mid-sem exam. Here some introduction is given. Water and wastewater quality monitoring programs have to be established in order to fulfill current legal requirements as well as environmental and social concern. मतलब कि वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अभी हम प्रेजेंट सिनारियो देखें तो प्रेजेंट सिनारियो के अकॉर्डिंग अगर वाटर प्योर नहीं है, राइट, सो वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, राइट। तो उसके लिए हमें वेस्ट वाटर का मॉनिटरिंग करना जरूरी है। इन दिस चैप्टर 4 multiparametric SIA systems. Full form of SIA is Social Impact Assessment, which are able to determine key parameters in water and wastewater such as VOD. VOD, that means biochemical oxygen demand. COD, that means chemical oxygen demand. TOC, that means total organic carbon. And TSS, that means total suspended solid. ये जो फुल फॉर्म है वो MSc में पूछ सकते हैं। ओके, ग्लोबल नाइट्रेट, टोटल फॉस्फोरस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनियम, ऑर्थोफॉस्फेट, anionic detergent, sulfate, pH, and conductivity are presented and discussed in detail. ओके, तो मीन्स ये जो पैरामीटर है मैंने चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि पीएच है तो रो वाटर के लिए पीएच 6.5 एंड स्टैंडर्ड वाटर के लिए उसकी रेंज थी 6.5 टू 8.5, राइट। सो यहाँ पे हम ये जो सब पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट वाटर का मॉनिटरिंग करेंगे। जो हम सैंपलिंग का सेटअप है तो उसमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया है। एट ऑटोमेटिक सैंपलिंग ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, मतलब कि जो ऑटोमेटिक हम सैंपलिंग करते हैं वाटर का तो उसके सोर्सेस कौन से है। सरफेस, ग्राउंड, रेन एंड इरिगेशन वाटर। इरिगेशन दैट मीन्स सिंचाई, सिंचाई पानी। And transporting these samples a rather long distance to the analytical equipment for direct analysis into container। मतलब कि सैंपलिंग के बाद मैं वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट कर सकती हूँ। यहाँ पे जो सैंपलिंग का कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में थोड़ा बताया है। We therefore constructed a sampling system consisting of 18 sampling points for groundwater and surface water
additional sampling points for irrigation water and rainwater. See in diagram 18 sampling point means 10 sampling point is here, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 and 18, right? So these 18 points are available, and here you can see rainwater and irrigation water is here, and this is for surface water and groundwater, right? So see here, water transport and distribution system including a remote control computer, a switch cabinet, and several analytical devices. मीन्स ये डायग्राम में आप देख सकते हो स्विच कैबिनेट, ओके, फिर यूवी फोटोमीटर, 4 पोर्ट वाल्व, आइसोटोप एनालाइजर, फ्लोमीटर, this is flow meter, and solenoid valves are available, and this is temperature sensor, okay. And one more thing, this arrow indicate for irrigation water and rainwater, you can see here, and these arrows indicate surface water and groundwater, right? So let's start. First we see switch cabinet, okay. स्विच कैबिनेट क्या है? स्विच कैबिनेट में हम डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, ओके, और फिर उसका कनेक्शन हम कंप्यूटर के साथ करते हैं, एंड कंप्यूटर के साथ उसका नेक्स्ट कनेक्शन आइसोटोप एनालाइजर के साथ भी करते हैं। तो पहले हम स्विच कैबिनेट के बारे में देखते हैं, राइट, ओके। एंड वन मोर थिंग, यू कैन सी सबके सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, राइट। पावर का सिंबल ये है जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, फिर ये वाटर का सिंबल, राइट, यहाँ से, फिर इथरनेट का सिंबल, फिर डिकॉन का सिंबल यहाँ पे है, इकॉन का सिंबल यहाँ पे है, ठीक है। फ्लो मीटर, ओके, सोलेनॉइड वाल्व, राइट। So here you can see all parameters symbol are available here. So first I explain switch cabinet. The switch cabinet is the link between the field equipment, pump and temperature sensors and control computer. जो स्विच कैबिनेट है उसका कनेक्शन किसके साथ किया है? फील्ड इक्विपमेंट, पंप, टेम्परेचर सेंसर, राइट, फिर कंप्यूटर के साथ भी उसका कनेक्शन हमने किया है, यू कैन सी इन डायग्राम, ओके। सो स्विच कैबिनेट इज कनेक्टेड विथ कंप्यूटर, टेम्परेचर सेंसर, राइट, solenoid valve, okay. The switch cabinet contains a surge protector connected to a permanent power supply 12 volt and 24 volt power transformers. Switch cabinet
का डायग्राम मैं आपको बताती हूँ. You can see here this diagram is for switch cabinet. स्विच कैबिनेट में हम परमानेंटली 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट का पावर सप्लाई लगा देते हैं. ओके, जो यहाँ पे लिखा है इन सेकेंड लाइन में लिखा है वो. इन थर्ड लाइन the 24 volt transformer provides electricity to an input output casing containing analog input, digital input and output cards. मतलब कि जो 24 वोल्ट जो सप्लाई प्रोवाइड किया है, राइट, वो सप्लाई डिजिटल आउटपुट में जा रहा है, डिजिटल इनपुट में जा रहा है, एनालॉग इनपुट में भी जा रहा है. ओके, और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है डिजिटल इनपुट कार्ड्स, डिजिटल आउटपुट कार्ड्स, मतलब ये हम पीएलसी में यूज करेंगे. आगे आप प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का सब्जेक्ट जब स्टडी करोगे तब इसके बारे में आपको सिखाएंगे. नेक्स्ट, स्विच कैबिनेट के बारे में ही अभी डिस्कस कर रही हूँ. डिजिटल आउटपुट कार्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंप एंड सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल. मतलब कि जो डिजिटल आउटपुट है वो हम पंप एंड सोलेनॉइड वाल्व को कंट्रोल करने के लिए उसका कनेक्शन करते हैं. The analog input card is connected to temperature sensors. ओके, जो हमारा जो एनालॉग इनपुट है उसका कनेक्शन हम टेम्परेचर सेंसर के साथ करते हैं. The digital input card receives signal from the flow meter and tipping rate gauge. मतलब कि जो हमारा डिजिटल इनपुट है वो कहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा? फ्लो मीटर से, राइट. द इनपुट आउटपुट केसिंग इज कनेक्टेड टू द कंट्रोल कंप्यूटर वाया a RS-232 to RS-485 converter and serial PC cable. मतलब कि जो हमारा इनपुट आउटपुट है उसका हम कनेक्शन करेंगे कंप्यूटर के साथ. उसके लिए हम केबल लगाएंगे कि RS-232 को हम RS-485 में कन्वर्ट करेंगे, सीरियल पीसी केबल. हियर यू कैन सी इन डायग्राम, राइट. जो डिजिटल इनपुट आउटपुट है उसका कनेक्शन हमने पीसी के साथ किया है RS-485 से. जो नेक्स्ट, a 12 volt transformer provides power to the pump and solenoid valves with relays used to start a pump or change the flow path of valve. मतलब आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो पंप है और वाल्व है उसको रिले के बाद हमने रिले का जो कनेक्शन है वो हमने सप्लाई के साथ किया है 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट. यू कैन सी इन डायग्राम. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यूवी प्रोसेस फोटोमीटर. यूवी प्रोसेस फोटोमीटर में फर्स्ट तो हमें वो पता होनी चाहिए कि यूवी की रेंज कितनी होती है. यूवी दैट मीन्स अल्ट्रा वायोलेट, राइट. सो जो वायोलेट के जो वायोलेट के पहले जो रेंज है, ये जो रीजन है वायोलेट के पहले का रीजन वो है अल्ट्रा वायोलेट रीजन. एंड इंफ्रारेड मतलब है कि रेड कलर के बाद जो उसका जो रीजन है वो है इंफ्रारेड.
So in next lecture I explain component UV process photometer, right? You can see आज मैंने स्विच कैबिनेट चलाया है and in next lecture I explain UV photometer, 4-port valve and isotope analyzer. आज आपको क्या करना है, जो मैंने चलाया है, राइट? आप टॉपिक लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, ओके, सैम्पलिंग सेटअप लिखो, राइट, उसका डायग्राम ड्रॉ करो और स्विच कैबिनेट का जो टॉपिक है वो आप पूरा कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है? एंड नेक्स्ट सेशन के लिए यूवी फोटोमीटर पेंडिंग रखो, वो मैं नेक्स्ट सेशन में चलाऊंगी, राइट? थैंक यू स्टूडेंट्स।